Canada's PNP immigration results for February 2022, a look back at last month's provincial nominee program updates and draw results from across the country. Canada's provincial nominee program PNP issued over 5,000 invitations to apply for provincial nomination in February. The PNP is an immigration program jointly administered by the federal, provincial and territorial governments. It offers Canadian provinces and territories the opportunity to create their own immigration streams to better meet their labor market needs and economic development objectives. Canada introduced the PNP in 1998 to spread the benefits of immigration more evenly among provinces and to encourage immigration to smaller provinces and less populated areas of the country. Today, the PNP accounts for a significant share of economic immigration to most provinces and territories in Canada. In fact, many smaller Canadian provinces such as Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba, and Saskatchewan depend on this program to meet their demographic and labor force needs. By 2024, PNPs alone are expected to result in more than 93,000 immigrants per year being admitted as permanent residents. फरवरी 2022 के लिए कनाडा के लिए PNP इमिग्रेशन के नताइज पिछले महीने के सूबाई नामजद प्रोग्राम के अपडेट्स पर एक नज़र डालते हैं और पूरे मुल्क से नताइज हासिल हुए हैं। देखते हैं इसमें क्या हुआ था। कनाडा की सूबाई नामजदगी या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम PNP ने फरवरी में सूबाई नामजदगी या प्रोविंशियल नॉमिनी के लिए दरख्वास्त देने के लिए 5,000 से ज़्यादा दावतनामे जारी किए थे। PNP एक ऐसा इमिग्रेशन प्रोग्राम है जो मुश्तरका तौर पर वफाकी, सूबाई और इलाकाई हुकूमतों के ज़ेर इंतज़ाम है। कनाडा के सूबों और खित्तों को ये मौका फराहम करता है कि वो अपनी लेबर मार्केट की ज़रूरियात और इक़्तिसादी तरक्की के मकासद को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए अपने इमिग्रेशन के सिलसिले तख्लीक करें। कनाडा ने 1998 में इमिग्रेशन के फ़वाइद को सूबों में ज़्यादा यकसा तौर पर फैलाने और छोटे सूबों और मुल्क के कम आबादी वाले इलाकों में इमिग्रेशन की हौसला अफजाई के लिए PNP मुतारिफ कराया। आज PNP कनाडा के ज़्यादातर सूबों और खित्तों में इक़्तिसादी इमिग्रेशन का एक अहम हिस्सा है। दर हकीकत बहुत से छोटे कनाडा के सूबे जैसे कि न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, मैनिटोबा और सस्केचुअन अपनी आबादी और मजदूरी क़ुव्वत की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस प्रोग्राम पर इन्हिसार करते हैं। 2024 तक सिर्फ PNPs के नतीजे में हर साल 93,000 से ज़ायद तारिकीन वतन या इमिग्रेंट्स को मुस्तकिल रिहायशी के तौर पर कनाडा में दाखिले दिए गए हैं। 2024 तक सिर्फ PNPs के नतीजे में हर साल 93,000 से ज़ायद इमिग्रेंट्स को परमानेंट रेजिडेंसी के लिए दाखिला देने की तवक्को की जा रही है और ये एक अच्छी खासी तादाद है। Express entry linked PNPs. So we will discuss in this topic what are the PNPs which are linked with the express entry. Express entry linked PNPs. Most participating provinces and territories have at least one PNP stream that is aligned with the federal express entry stream, which is Canada's management system for 3 immigration programs: the Canadian Experience Class, the Federal Skilled Worker Program, and the Federal Skilled Trade Program. Express entry linked PNP stream, also known as enhanced PNPs, allow a province to select candidates who have profiles in the express entry pool and invite them to apply for a provincial nomination. In an effort to reduce the backlog and processing delays currently affecting permanent residence applicants, IRCC has paused issuing express entry invitations to Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class Program, and Federal Skilled Trade Program candidates. It is important to note that this is a temporary interruption and that although he has not yet given a date, Canada's Minister of Immigration, Sean Fraser, recently indicated that invitations for these programs will resume in the near term. Moreover, given the importance of the PNP for the provinces and territories, IRCC is ensuring that express entry invitations for PNP candidates continue to be issued every 2 weeks. In fact, February saw a record 2,145 invitations to apply sent out through 2 rounds, almost twice as many as the previous months, which saw a total of 1,428 PNP candidates invited via 2 draws. Express entry से मुंसलिक जो PNPs हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ज़्यादातर हिस्सा लेने वाले सूबों और इलाकों में कम से कम एक PNP का सिलसिला मौजूद है जो वफाकी एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के तहत मुंसलिक है, क्योंकि 3 इमिग्रेशन प्रोग्रामों के लिए कनाडा का इंतजामी निज़ाम है जिसका नाम है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम एंड फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम। एक्सप्रेस एंट्री से मुंसलिक PNP स्ट्रीम्स जैसे कि एनहांस PNPs भी कहा जाता है, एक सूबे को ऐसे उम्मीदवारों को मुंतखब करने की याद देता है जिनके एक्सप्रेस एंट्री पोल में प्रोफाइल्स हैं और इन्हें सूबाई नामजदगी या प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए दरख्वास्त देने की दावत देते हैं। फिलहाल परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेंट्स को मुतासर करने वाले बैकलॉग और प्रोसेसिंग में ताखीर को कम करने की कोशिश में IRCC ने कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम और फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम उम्मीदवारों को एक्सप्रेस एंट्री के दावतनामे जारी करने को रोक दिया है। ये नोट करना जरूरी है कि ये एक आर्जी रुकावट है और अगरचे इसने अभी तक कोई
तारीख नहीं दी। कनाडा के वजीर बराए इमिग्रेशन शॉन फ्रेजर ने हाल ही में इशारा किया है कि इन प्रोग्रामों के लिए दावती राउंड करीब मुद्दत में दोबारा शुरू हो जाएंगे। मजीद बरा सूबों और इलाकों के लिए PNP की अहमियत को देखते हुए IRCC इस बात को यकीनी बना रहा है कि PNP उम्मीदवारों के लिए दाखिले के दावतनामे हर 2 हफ्ते बाद जारी होते रहें। दर हकीकत फरवरी में 2 राउंड्स के जरिए दरख्वास्त देने के लिए रिकॉर्ड 2145 दावतनामे जारी किए गए, जो पिछले महीने के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना थे, जिसमें कुल 1428 PNP उम्मीदवारों को 2 कुरानदाजी के जरिए मदऊ किया गया था। चलिए चलते हैं अब उन प्रोविंसेस की तरफ कि जिनके प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री या जो कि फेडरल हुकूमत के प्रोग्राम सिस्टम है इससे मुंसलिक हैं। फर्स्ट प्रोविंस व्हिच इज लिंक्ड विद द एक्सप्रेस एंट्री, दैट इज अल्बर्टा. February was an important month for Alberta's PNP. The province announced a name change for the department and the launch of 2 new streams to support immigration to rural areas of the province. In February, Alberta also released the results of 2 draws held through the Alberta Advantage Immigration Program. The province invited 350 candidates to apply for a provincial nomination on January 18 and another 400 candidates on February 1st under the Alberta Express Entry stream, guys. Alberta एक province है जो कि enhanced PNP है, जो कि Express Entry के साथ लिंक है। फरवरी अल्बर्टा के PNP के लिए एक अहम महीना था। सूबे ने महकमे के नाम की तब्दीली और सूबे के देही इलाकों में इमिग्रेशन के लिए 2 नए सिलसिले शुरू करने का ऐलान किया था। फरवरी में अल्बर्टा ने अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम, जिसका भी नया नाम रखा गया है, के जरिए मुनक़िदा 2 कुरानदाजी के नताइज भी जारी किए थे। सूबे ने 18 जनवरी को 350 उम्मीदवारों को सूबाई नामजदगी या प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए दरख्वास्त देने के लिए मदऊ किया और अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के तहत 1 फरवरी को मजीद 400 उम्मीदवारों को मदऊ किया गया था। थ्रू द ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, द प्रोविंस इनवाइट्स टॉप स्कोरिंग प्रोविंशियल कैंडिडेट्स ऑन अ वीकली basis. Invited candidates may apply to Express Entry British Columbia Skills Immigration as well as Tech Stream. These PNP programs are some of the most active in the country. In February, the province invited a total of 624 candidates to apply for a provincial nomination. इसी सिलसिले में जो Enhanced PNP है उसमें ब्रिटिश कोलंबिया भी शामिल है। ब्रिटिश कोलंबिया के सूबाई नामजद प्रोग्राम के जरिए सूबा हफ्तावार बुनियादों पर सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले सूबाई उम्मीदवारों को मदऊ करता है। मदऊ उम्मीदवार एक्सप्रेस एंट्री ब्रिटिश कोलंबिया स्किल्स इमिग्रेशन के साथ साथ टेक स्ट्रीम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ये PNP प्रोग्राम मुल्क में सबसे ज्यादा फाल हैं। फरवरी में सूबे ने ब्रिटिश कोलंबिया ने कुल 624 उम्मीदवारों को प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए दरख्वास्त देने के लिए कहा था। इन कनेक्शन टू द इनहैंस PNP programs, Manitoba is also included in that. Manitoba issues invitations regularly through the following 3 streams: skilled worker in Manitoba, skilled workers overseas, and international education streams. The province held 2 draws last month, the first on February 10th and the second on February 26th. A total of 551 letters of advice to apply were issued, of which 134 were sent to candidates who had a valid express entry profile. Manitoba मंदरजा झेल 3 सिलसिले के जरिए बाकायदी दावतनामे जारी करता है। मैनिटोबा में हुनरमंद कारकुन, बैरून मुल्क हुनरमंद कारकुन और बैनुल अक़वामी तालीमी सिलसिले के तहत सूबे में गुज़श्ता माह 2 कुरानदाजी हुई। पहली 10 फरवरी को और दूसरी 26 फरवरी को दरख्वास्त देने के लिए कुल 551 लेटर ऑफ एडवाइस जारी किए गए थे। इनमें से 134 ऐसे उम्मीदवारों को भेजे गए थे जिनके पास एक्सप्रेस एंट्री का दुरुस्त प्रोफाइल था। नोवा स्कोशिया is a province of Canada that is also has an enhanced PNP programs with express entry. The Nova Scotia Nominee Program (NSNP) invited 278 nurses who had profiles in the express entry system on February 8. More specifically, Nova Scotia Nominee Program invited nurses who may be eligible for Nova Scotia's Labour Market Parties stream and whose occupations falls under National Occupation Classification No 3012. इसी सिलसिले में नोवा स्कोशिया जो एक प्रोविंस कनाडा का है, enhanced PNP प्रोग्राम उनके पास भी हैगा। नोवा स्कोशिया नॉमिनी प्रोग्राम ने 8 फरवरी को एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में प्रोफाइल रखने वाली 278 नर्सों को मदऊ किया था। मजीद खास तौर पर नोवा स्कोशिया ने इन नर्सों को मदऊ किया जो नोवा स्कोशिया की लेबर मार्केट की तरजीहात के सिलसिले के लिए अहल हो सकती हैं और जिनका पेशा कौमी पेशा वराना दर्जा बंदी के तहत आता है, NOC 3012 के तहत। Let's come to the Ontario. The Ontario Immigrant Nominee Program (ONP) was very active in February. On February 8, the ONP issued 828 notifications of interest to candidates who may qualify for Ontario's French-speaking skilled worker and express entry human capital priority stream. Following day, on February 9, the province invited 749 candidates from the employer job offer, foreign worker, and in-demand skill streams. On February 22, Ontario once again issued notifications of interest to candidates who may qualify for Ontario's express entry as human capital priority streams. This was a significant draw with 773 invitations issued, but also because the score range included the maximum of 600 points, the most points that express entry candidates can earn without a provincial nomination. Prior to this draw, candidates with comprehensive ranking system scores above the maximum range were not eligible for nominations. That same day, Ontario also issued 8 employer job offers for
foreign worker stream invitations, this time targeting candidates of the Economic Mobility Pathway Project. On February 23, the province announced that those interested in being invited to apply to the entrepreneur stream no longer have to contact the program to request an expression of interest registration form, but can now register an expression of interest using the e-filing portal. Lastly, on February 24, Ontario issued 818 targeted invitations to candidates who may qualify for Ontario's Express Entry Skilled Trades stream. And just like for the Express Entry Human Capital Priority stream draw, removed the CRS cap. In total, Ontario invited 3,176 candidates to apply for a provincial nomination, more than any other province. 8 फरवरी को ONP ने उम्मीदवारों के लिए दिलचस्पी के 828 नोटिफिकेशन जारी किए जो ओंटारियो के फ्रांसीसी बोलने वाले हुनरमंद कारकुन और एक्सप्रेस एंट्री ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्कीम के तहत अहल हो सकते थे। अगले दिन 9 फरवरी को सूबे ने एम्प्लॉयर जॉब ऑफर की पेशकश से 759 उम्मीदवारों को मदऊ किया गैर मुल्की कारकुन और तलब में महारत के सिलसिले में। 22 फरवरी को ओंटारियो ने एक बार फिर इन उम्मीदवारों के लिए नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किए जो ओंटारियो के एक्सप्रेस एंट्री ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्कीम के सिलसिले के तहत अहल हो सकते थे। जारी करदा 773 दावतनामों के साथ ये एक अहम कुरानंदाजी थी, लेकिन इस वजह से भी कि इस स्कोर की हद में ज़्यादा से ज़्यादा 600 पॉइंट्स शामिल थे। वो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो एक्सप्रेस एंट्री के उम्मीदवार सूबाई नामजदगी के बगैर हासिल कर सकते हैं। इसी दिन ओंटारियो ने 8 एम्प्लॉइज जॉब ऑफर भी जारी किए। फॉरेन वर्कर स्ट्रीम दावतनामे इस बार इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवेज प्रोजेक्ट के उम्मीदवारों को टारगेट किए गए थे। 23 फरवरी को सूबे ने ऐलान किया कि जो लोग एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम में दरख्वास्त देने के लिए मदऊ किए जाने में दिलचस्पी रखते हैं, इन्हें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म की दरख्वास्त करने के लिए प्रोग्राम से रब्ता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब वो ई फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। आखिर में 24 फरवरी को ओंटारियो ने उम्मीदवारों को 818 टारगेटेड इन्विटेशंस जारी किए जो ओंटारियो के एक्सप्रेस एंट्री स्किल्ड ट्रेड स्ट्रीम के लिए अहल हो सकते हैं, और बिल्कुल उसी तरह जैसे एक्सप्रेस एंट्री ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम ड्रॉ के लिए CRS कैप को उन्होंने हटाया दिया था। मजमूई तौर पर ओंटारियो ने 3176 उम्मीदवारों को सूबाई नामजदगी के लिए दरख्वास्त देने के लिए मदऊ किया था, जो किसी भी दूसरे सूबे से ज्यादा है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट enhanced province linked with express entry system, and that Prince Edward Island. Prince Edward Island Provincial Nominee Program draws are pre-scheduled and held once a month. Prince Edward Island PNP held draws was held on February 17 and invited 117 candidates in the labor impact and express entry streams and 6 from the business impact stream. Guys, चलते हैं इसी enhanced PNP जो कि express entry के साथ मुंसलिक होता है, उसका नाम है Prince Edward Island. Prince Edward Island Provincial Nominee Program कुरानंदाजी पहले से तयशुदा और महीने में एक बार मुनक़िद होती है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड PNP की कुरानंदाजी 17 फरवरी को हुई थी और इसमें लेबर इम्पैक्ट और एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम से 117 और बिजनेस इम्पैक्ट स्ट्रीम से 6 उम्मीदवारों को मदऊ किया गया था। दिस इज खलील। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब इट, हिट द बेल आइकन बटन टू गेट न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं खलील। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको इमिग्रेशन से मुताल्लिक आने वाले वक्त में अहम वीडियोस पर वक्त मिल सके। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।